میں محمد سعد حسین آپ کا میزبان. ابھی میں ریاست پٹنہ کے نیو مارکیٹ میں موجود ہوں. عید کی تیاری پہ ہماری خاص پیشکش ہے. آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں خاص رپورٹ. عید کی رونق. پیارا نبی ہے وہ سونا نبی ہے میرا نبی میرا نبی سونا نبی سب سے پیارا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک منصوب جس سے ورفعنا لک ذکرک. اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک منصوب جس سے ورفعنا لک ذکرک. جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. وہ شمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے. واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے. وہ شمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے. واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے. عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. مقدوم مزمل مدثر وہی طٰہٰ. کیا نئے القاب سے مولا نے
اعتکاف یہ پچھلی امتوں میں بھی باقی تھا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا ہے اور آخری عشرے کا اعتکاف آپ نے کبھی بھی ترک نہیں فرمایا. جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعتکاف نہ کر سکے تو جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے شوال المکرم کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا. بخاری کی حدیث پاک ہے ایک مرتبہ رمضان کا آخری عشرے کا اعتکاف رہ گیا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک 2 عشرے کا اعتکاف آپ نے فرمایا اور آخری عشرے کا اعتکاف تو کبھی نہیں آپ نے ترک فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ رُكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے تاکید فرمائی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ اعتکاف کرنے والے طواف کرنے والے رکوع اور سجدہ کرنے والے کو ہمارے گھر کو خوب صاف ستھرا کرو. یعنی کعبہ مشرفہ کے رب کعبہ کے جانب سے کعبہ کی پاکیزگی صفائی اور ستھرائی کا حکم خود رب کعبہ کی جانب سے اعلان کیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے میرا گھر خوب صاف ستھرا کرو اور تاکہ اس کا فرش بالکل صاف شفاف ہو, دیوار آئینہ دار ہو تاکہ عبادت کرنے والے کو طواف کرنے والے کو دل جمی نصیب ہو. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف کبھی ترک نہیں فرمایا. اور پہلے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا 20 دن کا اعتکاف فرمایا اور فرمایا میں نے شب قدر کو پانے کے لیے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا, پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا, پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے تو جو تم لوگوں کو میرے ساتھ جو اعتکاف کرنا چاہے تو اعتکاف کر لو. اور پھر اللہ کے پیارے نبی کا یہ معمول ہو گیا کہ کبھی آخری عشرے کا اعتکاف آپ ترک نہیں فرمایا کرتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ اللہ آپ کے بعد امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف کرتی رہیں یہاں تک کہ آپ کو وصال ظاہری دے دیا پھر بھی امہات المومنین اعتکاف کرتی رہی ہیں. اعتکاف کے معنی افق سے منع ہے جس کے معنی ٹھہرنے کے ہیں. اس اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ 20 تاریخ کو مسجد میں نیت کے ساتھ غروب آفتاب سے پہلے نیت کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جائے اور 29 تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد یا پھر 30 تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد اس طریقے سے مسجد سے باہر نکلے. اعتکاف کے لیے ہر عاقل بالغ جنابت و حیض نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے. جو بالغ ہے وہ عقل رکھتا ہے وہ بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے. عورت اپنے مسجد بیت میں اعتکاف کریں اور اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پانے کے لیے شب قدر کو پانے کے لیے اعتکاف فرمایا ہے. اور شب قدر کی فضیلت کو کیا کہنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں کلام پاک میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر. بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تو نے جانا کیا شب قدر کیا ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے. ہر کام کے لیے سلامتی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے شب قدر کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ تشریف لایا تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کی بھلائی سے کوئی محروم نہیں رہتا. جو اس کی بھلائی سے محروم رہ گیا وہ حقیقتاً محروم ہے. یعنی شب قدر ایسی فضیلت ایک رات کی عبادت کر لیا جائے تو 83 سال 4 مہینے سے زیادہ کا ثواب پاتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں اس رات کو یوں ہی نہیں گنوانا چاہیے. اس میں اکثریت بھاری کی رائے یہی ہے کہ 27ویں سب کو ہی شب قدر ہوتی ہے. ہو سکتا ہے 21 23 25 گزر جائے لیکن بھاری کی اکثریت کی رائے اس میں ائمہ اربعہ کا بھی اختلاف ہے. امام اعظم و حنیفہ کا قول یہ ہے کہ 27ویں شب کو شب قدر ہونی چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ 21ویں شب کو شب قدر ہونی چاہیے. امام احمد بن حنبل اور امام مالک کا قول یہ ہے کہ یہ کوئی ایک رات اس کے لیے متعین نہیں ہے بلکہ ہمیشہ یہ کبھی 21 کبھی 23 کبھی 25 کبھی 27 کبھی 29 میں شب قدر ہو جایا کرتی ہے. اکثریت کا اختلاف ہونے کے باوجود بھی اکثریت کی رائے یہی ہے کہ شب قدر 27 کی ہی ہوتی ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 27ویں شب کو ہی شب قدر ہوتی ہے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ 27ویں شب کو ہی شب قدر ہوتی ہے. غوث پاک غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 27ویں شب کو ہی شب قدر ہوتی ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس تفسیر میں اس پرانے اس آیت کے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں 9 حرف ہے اور یہ سورہ قدر میں 3 مرتبہ آیا ہے. 3 کو 9 سے ضرب دینے سے حاصل جب 27 آتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ 27ویں شب کو ہی شب قدر ہوتی ہے. شب قدر کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنی دیر جتنی دیر بکری کا دودھ لیا جاتا ہے وہ قائم اللیل اور صائم الدہر یعنی رات میں قیام کرنے والے اور صبح یعنی پورے روزہ رکھنے والے سے بہتر ہے. جسے مجھے جو نبی برحق بنا کر کے بھیجا گیا
शब कद्र में एक आयत कुरानी का पढ़ना दूसरी रात में पूरे कुरान के पढ़ने से बेहतर है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इल्म हो जाए कि आज शब कद्र है तो मैं क्या पढ़ूँ, तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, बेशक तू माफ़ फरमाता है और माफ़ी देने को पसंद भी करता है, लिहाजा मुझे भी माफ़ कर दे। इस आयत को इस तरीके से, इस दुआ को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। इस रात को यूँ ही इबादत में नहीं गुजारना चाहिए, लहव अलैह में नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि गिरियोज़ारी करना चाहिए, अल्लाह से मग़फ़िरत करना चाहिए, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है हमें और आपको, तमाम मुसलमान को तमाम आफ़ात व बलियात से मामून महफूज फरमाए, इस मुल्क की आइन की हिफाजत फरमाए, इस मुल्क में अमन चैन अता फरमाए। रमज़ान के आखिरी अशरा यानी 20 रोज़ा जब पूरा हो जाता है, उसके बाद हदीस में आया है कि ताक रातों में, जैसे 21वीं रात 20 रमज़ान के बाद जो रात आती है, 23वीं रात जो 22 रमज़ान के बाद आती है, 25वीं रात जो 24 रमज़ान के बाद आती है और 26वीं रोज़े के बाद जो रात आती है 27वीं शब, या 28वीं रोज़े के बाद जो रात आती है 29वीं शब, इसमें आता है हदीस में कि शब कद्र की तलाश किया करो कि इन रातों में से कोई एक रात ऐसी है जिसमें एक रात की इबादत 1000 महीने से ज़्यादा फजीलत रखती है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि उसी रात में हमने कुरान करीम को नाजिल किया है और वो एक रात 1000 महीनों की रातों से अफजल है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। इसलिए हम सबको चाहिए कि ये अशरा जो चल रहा है, हम रोज़ाना रातों को इबादत में गुजारें रमज़ान के, वरना कम अज़ कम जो ताक रातें हैं, जैसे अब बची हुई हैं 25वीं रात, 27वीं रात या 29वीं रात कहिए असल, जिसमें 27वीं रात में ज़्यादा इम्कान है शब कद्र के होने का। और ये ख़ास बात यह है कि इसमें जो दुआ भी की जाती है वो कबूल होती है, इंसानों की मग़फ़िरत होती है। इसलिए इस रात को ख़ास तौर पर इबादतों में गुजारना चाहिए। इस रात की इब्तिदा सूरज डूबने के साथ ही हो जाती है और उसका वक्त का इख्तिताम जब सहरी का वक्त ख़त्म होता है, यानी सुबह सादिक होती है, उस वक्त जो है ये शब कद्र का वक्त ख़त्म होता है। इसलिए हर वो शख्स बंदा जो कोई भी मगरिब की नमाज जमात के साथ, इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ेगा, तहज्जुद पढ़ेगा, तो उसको हर हाल में शब कद्र की बरकत मिलनी ही मिलनी है। इसलिए हम सबको यकीन रखना चाहिए कि हम सबको शब कद्र ज़रूर मिलती है, अलबत्ता हमें पता नहीं चलता है। इसलिए हमें रोज़ाना रातों में दुआओं का एहतमाम करना चाहिए, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगनी चाहिए, इंसानों के लिए, तमाम आलम के लिए दुआ करनी चाहिए, अमन की, आफ़ियत की और आखिरत में मग़फ़िरत की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ आए और बहुत अहम मौजू पर आपने बात करने के लिए कहा। भाई, जो लैलतुल क़द्र है, ये रमज़ान के महीनों में एक रात अल्लाह तबारक व तआला हमें अता करता है, वो भी आखिरी आशरे में। आखिरी आशरे में भी जो ताक रातें हैं, 21वीं, 23वीं, 25वीं और 27वीं और 29वीं, इन्हीं रातों में से किसी एक रात में वो रात आती है और इतनी बड़ी फजीलत वाली रात है। अल्लाह ने कुरान में उसकी फजीलत को बयान किया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि शब कदर जो है, लैलतुल क़द्र जो है, वो एक रात 1000 महीनों से अफजल है। यानी अगर उस एक रात में किसी को इबादत का मौका मिल गया तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 1000 महीने से भी ज़्यादा इबादत करने का सवाब देता है। और ये इस कदर अहम है, आदमी खुद सोचे कि ये कुरान से साबित है और अल्लाह खुद कह रहा है, तो हमें कितना एहतमाम करना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अहम
इतना समझते थे, इसलिए आखिरी अशरे में बाकायदा एतिकाफ़ करते थे ताकि उस रात को पा लिया जाए। इसलिए जो रातें बाकी हैं, कम से कम उन रातों में अगर हमने सुन्नत एतिकाफ़ नहीं किया तो कम से कम नफिल एतिकाफ़ करके मस्जिद में रहेंगे तो मौका हमें मिलेगा कि हम रात जाकर उस रात को पा सकें। 2 रातें तो गुजर गई है, अब 3 रातें गुजर गई है, अब 2 रातें और बाकी 27वीं और 29वीं, उसमें भी 27वीं की बड़ी अहमियत है। तो लिहाजा हम उस रात में जागें, अल्लाह की इबादत करें, उम्मत मुस्लिमा के लिए मांगें, सारी इंसानियत के लिए मांगें, मुल्क के अंदर अमन अमान के लिए मांगें, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मुसलमान माँ बहनें औरतों बच्चों के लिए दुआ करें और वहाँ के ज़ालिमीन के लिए बद्दुआ करें कि वो जिस कदर जुल्म ढा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी पकड़ करें। ये बहुत ही अहम रात है जी। क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया लुंगी बेच रहे, बहुत बिक रहा है, इसका बहुत बढ़िया तैयारी चल रहा है माशाल्लाह। बहुत अच्छा। आप खुश हैं? हाँ बहुत खुश है भैया, बहुत बढ़िया। ये वाला इंशाल्लाह मेरे अब मम्मी पापा सब ईद में कपड़ा उपड़ा सब सिला दिए हैं, तब पूरी कुछ ही दिनों में ईद आने वाली है, तो अब परवी की ईद ही बस बाकी है, अब सबसे ईद ही लेना है। क्या क्या तैयारियां हुई हैं? वो मेरा कपड़ा सब सिला गया है, कुर्ता हो गया और चप्पल उपल हाँ वो सब हो गया, बस सब हो गया जी। और अभी रिजल्ट भी आ गया तो उसमें हम 6 में क्लास प्रमोट। जैसे कि ठीक ही चल रहा है, पिछले 2 साल से तो बहुत डाउन चल रहा था सरकार के वजह से, लेकिन अभी तो चेंजिंग वेंजिंग हुआ था तो दुकानदारी थोड़ा ठीक है। लेकिन फुलवारी का दुकानदारी तो जान ही रहे हैं, कस्टमर को हर तरह के लोग हैं फुलवारी में, लेकिन ज़्यादा कंसेशन होता है, इसी की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन दुकानदारी पहले से ठीक है। क्या मिनिमम आप लोग क्या रखे हैं और क्या? हम लोग हर रेट का कुर्ता रखे हुए हैं, कम प्राइस से लेके ज़्यादा प्राइस तक, जैसे कस्टमर रहते हैं उसी हिसाब से। क्या रेट है आपका? फिक्स प्राइस हम लोग रखे हुए हैं, क्योंकि कंसेशन का यहाँ फुलवारी में बहुत ज़्यादा है। मिनिमम क्या है? मिनिमम हम लोग के 300-400 से कुर्ता की स्टार्टिंग है, 2000-3000 तक मिलता है। अच्छा कुर्ता है, हर कंपनी का हम लोग रखे हुए हैं, जैसा कस्टमर वैसे कुर्ता देते हैं। ये दुकान का आपका समय क्या है जो खुलने का बंद होने का? दुकान तो हम लोग का 9 बजे खुल जाता है और रात में 12-12:30 तक हम लोग। नाम बताइए अपना। मेरा नाम औसाफ है। और यही आखिर में अगर दिक्कत होता है तो ज़्यादा दिन तक खुल जाता है, देर तक रात में। क्या क्या तैयारियाँ बताइए होगा तो बोलिए। तैयारी तो अभी कर ही रहा है, जैसा कि है ईद है मनाना ही है, क्योंकि रोज़ा रखता है अभी पूरे महीने, और जितना भी दाम रहे लेके आके खरीदता ही है, खुशी मनाता ही है। ईद की बहुत कम समय रह गया है, ईद 1 हफ्ते में आने वाली है, क्या क्या तैयारियां हुई हैं? बहुत है, लेकिन अब टाइम भी कम है, आदमी कर ही रहे हैं। तैयारियां में क्या क्या? बच्चे लोग के कपड़ा हो गई, कपड़े भी खरीदा है, बहुत सारे मिठाई है, सिवाय यही सब आदमी खरीद ही रहा है, अभी और भी बाकी है, और खरीद रही है, और अच्छा भी दाम पड़ जाता है, उसमें ही डालना बहुत अच्छा है, मतलब लग रहा है एकदम, इस बार कुछ अलग भी लगा है एकदम कि हाँ इस बार अच्छा लग रहा है। मतलब तैयारी आपकी कंप्लीट, तैयारी पूरी हो गई? कहाँ से आप आई हैं? फुलवारी से आए हैं, नया टोला मस्जिद। पूरी तैयारी आपकी हो गई, बच्चे के सब कपड़े खरीदा गए? ठीक। बहुत बेहतरीन लगा है, रमजान का बाजार अच्छा लग रहा है, इतनी भीड़ है, बहुत माशाअल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। नाम बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह की ज़ात से अच्छे की उम्मीद भी है, इंशाअल्लाह ताला अगर चाहा तो हम लोगों को कारोबार में और बरकत होती जाएगी। और अल्लाह ताला ने इस रमज़ान के महीने में बरकतों का महीना कहा है, तो बेशक उसकी ज़ात से उम्मीद भी है, बरकत भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इसी तरह सभी भाइयों को आगे बढ़ाता रहे, सबों को बरकत देता रहे कारोबार में, अल्लाह से मेरी यही दुआएँ हैं। और ये तीसरा अशरा जो होता है, इस अशरे का क्या कहना है, ये निजात का अशरा है, इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला सभी की दुआएं कबूल करेगा। जो इसने भी जो ऐसी भी दुआएं मांगा है, अल्लाह ताला उन सबों की दुआएं कबूल करे। और मेरे मुल्क के शांति और अमन के लिए भी अल्लाह ताला, जो हम भी दुआगो हैं, सब लोग दुआगो हैं कि अल्लाह ताला मेरी दुआएं कबूल करे और मुल्क में अमन और शांति का माहौल बना रहे, और हम लोग इसी तरह से खुश खुर्रम ईद की खुशियाँ मनाते रहें। इसी के साथ हम लोग अपनी ईद के साथ, ईद की बधाइयों के साथ, अपनी मुबारकबादियों के साथ आप लोगों का शुक्रिया अदा करता रहूँ।
और आप लोग भी हम लोगों का इसी तरह से साथ देते रहे इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह ने चाहा तो हम चाहें कि बेहतर से बेहतर हो और हमारी सारी दुआएं अल्लाह ताला कबूल करे। और जिन लोगों के भी हाथ अल्लाह ने अपने बारगाह में उठा हुआ देखा और अपनी ज़बान से जिसने भी जैसी भी दुआएं मांगी अल्लाह सभी की दुआओं को कबूल करे। नाम बताइए। ये ज़्यादा स्टॉक के कपड़े की ज़्यादा डिमांड है और अद्धी में बूटी और प्लेन में बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्या रेंज का आता है? और ये आपको 400 से लेके 1200 रुपये मीटर तक आता ही है और ये 300 से लेके 500 मीटर तक आता है अद्धी में। मतलब मिनिमम आप लोग के यहाँ क्या है और मैक्सिमम कितना तक? मिनिमम मेरे यहाँ 400 से स्टार्ट है सीक्वेंस वाले में, मैक्सिमम 1200 1250 तक मिल सकता है। 10 रमजान गुजर गया है, मतलब कैसा अभी मार्केट कैसा है? क्या माशाल्लाह मार्केट बेहतर है, पहले से बेहतर इस साल है। पहले मतलब सेलिंग ठीक है, अच्छा है। महंगाई को लेकर कुछ असर? महंगाई का कुछ तो असर है, जहाँ आपको 300 था वहाँ 500 रुपये हो गया, महंगाई की तो असर है। ठीक, धन्यवाद। आप देख रहे थे ईद की रौनकें, ईद की तैयारी पे हमारी खास पेशकश। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। मैं मोहम्मद साद हुसैन।